Hello everyone, a very warm welcome to you on Unacademy. I'm Prashasti Arora and today we will be discussing about the Rotterdam Convention. ये convention basically important है environment point of view से और ये जो points है आप अपने answers में भी लिख सकते हैं. ये convention का पूरा नाम है Rotterdam Convention for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides. We will understand what exactly is this convention all about, what are the objectives of this convention, and in the end we'll also do a question to understand what kind of questions can come in prelims. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. उससे पहले नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं यूपीएससी सीएससी के लिए 2021, 2022 और 2023 के लिए. वो स्टार्ट होने वाले हैं 25 जनवरी. तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है प्लीज़ डू दैट राइट अवे. और जो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ वील डिस्कस अबाउट द कन्वेंशन. वील टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कन्वेंशन. We'll talk about the mechanisms and we'll talk about the impact of these hazardous chemicals and pesticides and why they need to be banned completely. अब हमें सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो ये है कि रॉटरडैम कन्वेंशन जो है और इसको ऑन prior informed consent, बेसिकली ये prior informed consent between countries के context में है for certain hazardous chemicals and pesticides in and is for promoting, basically ये जो convention है it is for promoting shared responsibility between importing and exporting countries in promoting human health and in the environment from certain hazardous chemicals and pesticides. तो मेन इसका जो एम है इट्स फॉर प्रमोटिंग शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, इट्स फॉर प्रमोटिंग शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन importing and exporting countries. Now talking about some of its other objectives, it basically aims to promote shared responsibility and cooperative efforts. मतलब हर country को, हर party को to this convention needs to have that shared sense of responsibility, and efforts need to be taken from each side of the party in order to ensure कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्टन हजार्डियस केमिकल्स हैं वो बंद हो जाए. एंड वाई शुड इट बी स्टॉप्ड? इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वी आर प्रोटेक्टिंग आवर ह्यूमन हेल्थ एंड environment from the potential harm. Now in fact the second important objective is to contribute to the environmentally sound use of these hazardous chemicals by facilitating information exchange. Now information exchange जो है उसका ये मतलब होता है कि parties जो हैं वो अपने एक दूसरे से coordinate करके efforts डाल के जो भी ये जो chemicals Rotterdam Convention के अंडर साइन हुए हैं उस पर फोकस करें. Now we don't have to know exactly these chemicals and pesticides, but we have to know what the Rotterdam Convention is doing. Now when was this convention adopted in? It was adopted in 1998 and आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये एफर्ट इट्स बेसिकली एफर्ट्स बिटवीन अमंग पार्टीज एंड it needs to be cooperative efforts in that regard. Now talking about the mechanisms, now remember in the first slide we talked about Rotterdam Convention on prior informed consent. Basically this mechanism includes formally obtaining and dismantling the decisions for importing parties, right? It basically means कि जो decisions लिए गए हैं उसके लिए जो decisions हैं वो parties से पूछ कर लिए गए हैं. prior informed consent है ना. प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है पहले से हाँ और ना पूछ लेना फ्रॉम द पार्टीज. देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म इज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था जो ऑब्जेक्टिव है कि पार्टीज के अमंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए. अभी किस चीज़ का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए? इट इज़ बेसिकली
रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टी टू इन्फॉर्म अदर पार्टीज, जैसे एक नेशन है और दूसरी नेशन को बताना अबाउट दिस नेशनल बैन एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. दूसरी चीज, पॉसिबिलिटी फॉर पार्टी टू इन्फॉर्म अदर्स दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सिवियरली हजार्डस पेस्टिसाइड. सो अगर as for example a nation is experiencing problems related to a pesticide जो अभी तक किसी और नेशन ने इस्टेब्लिश नहीं किया है, so it is the onus lies on that on the first party, on the first nation to ensure कि ये जो hazardous pesticide है अगर वो कहीं और भी है तो उसको बैन कर दीजिए, है ना. that information, that flow of information needs to be there. और तीसरा, requirement for parties to report chemicals that are restricted for exchange. अगर कोई नेशन दूसरी नेशन को एक ऐसी देर एक्सचेंज ऐसा केमिकल एक्सचेंज कर रही है जो बैन है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टी का है जिसको ये रिसीव हुआ है कि वो बताए कि ये रिस्ट्रिक्टेड है. सो दिस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसा कि हमें पता है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और ये आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन न्यू टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स आर हार्मिंग the environment and the human health in general. Now this was about in a nutshell, बहुत छोटा सा आपको मैंने explanation दे दिया कि क्या है रॉटरडैम कन्वेंशन, क्या करता है ये, कैसे प्रमोट करता है ये ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल रहे, और राइट एंड इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके क्या मैकेनिज्म्स हैं. तो इन अ नटशेल आपको यही पता होना चाहिए. एंड नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट डू अ क्वेश्चन ऑन दिस कि कैसे पोटेंशियल क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला, रॉटरडैम कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन 1998. और दूसरा, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कन्वेंशन इज टू प्रमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ hazardous chemicals which can harm humans and its environment. Select the correct answer using the code given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. मैं आपको 10 seconds दूंगी, आपको ये आंसर देना है और आप कहीं भी लिख सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं. और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स में, राइट. सो आई एम गिविंग यू 10 seconds for this question. ठीक है. सो इसका जो आंसर है वो ऑब्वियसली सी है. दोनों ही जो ये स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है. मैंने अपने स्लाइड्स में बताया भी था कि रॉटरडैम कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन 1998 एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कन्वेंशन इज टू प्रमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ hazardous chemicals which can harm humans and its environment. So this was about the Rotterdam Convention. इसमें आपको फॉर द टाइम बीइंग यही जानना ज़रूरी है. कभी भी यूपीएससी केमिकल्स पर से नहीं पूछेगा कि इस कन्वेंशन में कौन से केमिकल्स बैन हैं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस ये समझना है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ये जो मैकेनिज्म्स हैं, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, वो क्या है. मैंने दूसरे भी एक्सप्लेनर्स करे हुए हैं ऑन स्टॉकहोम कन्वेंशन. देन आई हैव डन important reports and indices, for example human development report, world happiness report. So do have a look at that, क्योंकि वो जो points हैं आपको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, and you can enhance your answers by using those points. So please do look at those videos. And जो मैं स्पेशल क्लासेस लेती हूँ उस पर भी मैं काफ़ी प्रैक्टिस कराती हूँ MCQs की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की. तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर भी. एंड मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड PRES10 फॉर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन, ताकि आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाए. और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट, आइकॉनिक प्राइस हाइक होने वाला है. तो अगर अभी तक आपने अपग्रेड नहीं किया है प्लस सब्सक्रिप्शन से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, प्लीज़ डू दैट राइट अवे, क्योंकि 25 जनवरी के बाद प्राइस हाइक हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू अवेल दीज बेनिफिट्स. सो प्लीज़ डू अपग्रेड फ्रॉम द प्लस टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन राइट अवे. ठीक है. तो ये था रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.